So hello everyone. Ramas ने मुझे पहले काफी अच्छा इंट्रोड्यूस करा दिया है. So I think I'll move forward to the actual workshop. Um, just a little bit of introduction. My name is Zaram Zahra, and I am a data scientist working at the Entertainers right now. And I have done my bachelor's from in 2016 from Islamic University. उसके अलावा I am currently leading GDG Cloud Islamabad, and today I'm here for this technical workshop. I hope आप लोग आज कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे. And if you want to connect with me for any queries or anything, you can use my LinkedIn, Instagram, or Twitter. I will try to reply to your queries as much as I can. मेरी capacity में जितना हो सका. So today we are going to do some coding in TensorFlow, and we are going to move from basic machine learning to neural nets to CNNs. और मैं आपके साथ कुछ exercises share करूँगी इस कोर्स के बीच में जो कि आप बाद में try कर सकते हैं. Please do let me know अगर वो कोर्स exercises आप जरूर try करें और उसके बाद आप मुझे बताएं कोई problems है या आप लोगों ने उससे कुछ सीखा. So let's start with traditional programming. Let's think a little about traditional programming and what it looks like from a very high level. If you have to create a financial software where you write code that gets data and does something new with it, there is a popular analytics called PE ratio, which is for a price to earnings. So code for calculating that would look something like this, where we have two variables, price and earnings, and then you can calculate using this simple formula, and then it will return some kind of a result, right? So now you should think in terms of three things. There is data, then you have some kind of rules that you write that act on the data and brings value because those rules provide answers, right? So रूल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपका इनपुट होते हैं और जो आपके आंसर्स आएंगे जो भी हार्ड कोडेड फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगा. लेकिन अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं, ठीक है, so like in summary traditional programming looks like this, using previous explanation. You have rules and data that come in and then you have answers that come out. Machine learning is just a reorientation of this diagram. Instead of us programming instead of us programmers trying to figure out rules that will give us the answers, what if we can feed a lot of data with answers and have a machine figure out those rules, what those rules are, right? So that's what machine learning actually is. Get a lots of data, know what the answers are to that data, and that's the process called labeling, जहाँ पे आप अपने जो भी known answers होते हैं आप उनको label करते हैं और आप जो भी machine learning का model train करते हैं उसके साथ आप वो answers उसके अंदर feed करते हैं. और machine learning model खुद वो rules जो traditional programming में hard code करते हैं, machine learning model जो होते हैं वो rules खुद figure out करते हैं, data में relation खुद figure out करते हैं, and then they will give you the output for any data जो unknown होता है. So let me give you an example. ये simple एक example है जिसमें आपने activity detect करनी है. For example, एक बंदा है वो is he walking, running or biking, right? And अब अगर मैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं कि हम 3 तरह के ऑप्शंस रख सकते हैं. अगर स्पीड 4 से कम है तो बंदा वॉक कर रहा है, अगर स्पीड 4 से ज्यादा है तो वो बंदा भाग रहा है, और अगर हम इसके ऊपर रख दें कि अगर स्पीड 12 या उससे भी ज्यादा है तो वो बंदा रनिंग कर रहा है. बट व्हाट इफ आई नीड टू डिटेक्ट गोल्फिंग, मैं इसके साथ गोल्फिंग को डिटेक्ट नहीं कर सकती ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में. क्यों? बिकॉज इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. अगर आप किसी ऊंची जगह पर जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी जो भागने की स्पीड है वो मेरी वॉकिंग की स्पीड के इक्वल हो, राइट? तो मैं कभी भी ये इन रूल्स के साथ ये डिसाइड नहीं कर सकती सिंपली कि ये बंदा चल रहा है या ये बंदा भाग रहा है या ये बंदा गोल्फिंग कर रहा है, राइट? सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिस तरह एक्टिविटी रिकग्निशन का प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व नहीं कर सकते. तो आप क्या करेंगे? अब आप दूसरा सिनेरियो ले रहे हैं, एक आपके पास डिफरेंट लोग हैं, आपने सेंसर्स अटैच कर दिए उनके साथ जो शायद हर पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे किसी इंसान की. जिस तरह इस स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे
कुछ डेटा दिया हुआ है और उसका लेबल हमने वॉकिंग कर दिया। अगर आपके पास कुछ डेटा सेकंड पिक्चर जैसा आ रहा है, जैसे आपको सेकंड पिक्चर नजर आ रही होगी मेरी स्लाइड में, अगर इस तरह का कोई डेटा आ रहा है तो उसका मतलब है कि यार ये बंदा रनिंग कर रहा है। इसी तरह बाइकिंग और गोल्फिंग का भी कुछ ना कुछ डेटा आ रहा होगा। एक्चुअली ये जो 110001 है, वी डोंट नो कि ये डेटा क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये वो डेटा है जो एक सेंसर रिकॉर्ड करके आपको देता है फॉर रनिंग, फॉर बाइकिंग, फॉर गोल्फिंग, राइट। अब इस डेटा, we have the data and we have the labels for it, but we don't know the relationship between these between the data and those relationships. अब मशीन लर्निंग मॉडल का ये काम है कि जब आप उसको ये डेटा फीड करते हैं तो वो खुद अम, उन उस डेटा के बीच में और एक्टिविटी के बीच में रिलेशंस जो है वो खुद ढूंढता है। वो कैसे ढूंढता है ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे अपने कोड में जाकर देखेंगे कि बेसिकली ऐसा क्या होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो समझना शुरू हो जाता है कि डेटा के अंदर क्या रिलेशनशिप्स है, डेटा के अंदर क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, और यही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपकी कंप्यूटर विजन में या आपकी एनएलपी के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल सिनेरियो and consider it a hello world of machine learning. Yeah. So take a look at these numbers. There is a pattern that connects them. There is a relationship between x and y that holds for x y pairing, each x y pairing. x समझे आपका इनपुट है और y जो है वो बेसिकली कैलकुलेट हो रहा है, y आपका आउटपुट है, वो किसी फॉर्मूला या किसी रिलेशनशिप की बेस पे कैलकुलेट हो रहा होगा। For so when your x is -1, your y is -3. When your x is 0, your y is -1. When your x is 1, your y is 1. So can you see what the pattern is? Like, I'll give you a moment to think about it and comment if you can see the pattern. क्या आपको नजर आ रहा है कि ये y किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है? If you can see the pattern, तो आप प्लीज जरूर कमेंट करें। Can you see the pattern in it? I'll give you a moment, like 30 seconds. You have 30 seconds. Can you see the pattern? एक्स और वाई का रिलेशनशिप आपको अगर नहीं समझ में आ रहा था, नो लिख दे जाके दे रहा हूँ, मूव क्विकली टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so let's. So the relationship is that every y is 2 times the corresponding x minus 1. If you had got the answer, how did you get it? Like for me, if I saw that y increases by 2 and as x increased by 1, so I guess that that's y is equal to 2x, right? Or maybe उसके साथ plus minus something. And then I took a guess that it might be -1 because when x is 0, the answer is -1, right? I looked over all the numbers and found out that this relationship worked. That's almost exactly how a neural network does it. Let's explore this in code. But before that, let me explain you a little bit about neural network, उसका structure कैसा होता है। I was reading your comments. कुछ लोगों ने सही आंसर्स दिए, कुछ लोग क्लोज थे आंसर से, but good, you at least tried. Okay. So if you look at this structure, let me explain a little bit about neural network. Each of the columns in the red colors are actually layers. So in this neural network, we have 3 layers. Every yellow blob you are seeing is neuron. And every neuron in each layer is connected to all other neurons. If you see the red part in this diagram, you can see कि हर पिछला neuron अगले neuron से connected है. So what this means कि in layers की आपस में जो connectivity वो dense है. These layers have dense connectivity, so we call them dense layers or dense networks. So आपको पता चल गया कि एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर लेयर्स होती हैं, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और कोई ना कोई सी कनेक्टिविटी टाइप होती है, जैसे कि यहाँ पे ये डेंसली कनेक्टेड है। So next, so here is an app that will figure out the relationship for us in code, जो भी हमने पिछली एग्जांपल में रिलेशनशिप देखा था, सेम वही वाला। So I know these are few new concepts here, so I'm going to unpack all of them one by one. First, first line is Keras or sequential, right? Keras is a framework within TensorFlow for making the definition of training and using ML models easily. Sequential basically tells us that we are going to define a sequence of layers. In the diagram I showed you earlier, we had 3 layers. What do you think? How many layers do we have here now? So we have
one layer here because we have one line of code within the sequential. And what kind of layers are these? As you can see that we have unit one, it means that we have one layer and the layer type is dense, right? So we have one layer with one neuron, जिसकी type क्या है? Dense है. So it is the simplest type of the layer with one neuron in it. The next चीज आप देख रहे होंगे input shape parameter. Input shape parameter जो है वो I said input shape parameter tells us about the shape of the input on which we are going to train our model, and it is just one value for now. So we have a very simple neural net जिसमें एक न्यूरॉन है, इनपुट शेप भी हमें पता चल गई वो भी 1 है, एंड दिस इज डेंस न्यूरल नेटवर्क. सेकेंड लाइन अगर आप देखिए तो उसके अंदर हमारे पास है मॉडल डॉट कंपाइल का फंक्शन. The core of how the network learns is in these two parameters, the optimizer function and the loss function, where all the maths in machine learning comes from. Don't worry, हम बहुत ज़्यादा maths नहीं खेलेंगे यहाँ पे. I'll just explain them broader level के ऊपर मैं explain कर दूँगी. So basically the neural net जो हम यहाँ पे train करें it has no idea about the relationship between the data and the labels. So it has to make a guess, right? So it can this neural network will look at the data and evaluates the guess. आपके डेटा को देखिएगा उसके बाद neural network जो है वो guess बनाएगा. So the loss function is the way of measuring how good or bad that guess is. The result of this is then used by the optimizer function to make another guess. आपका neural network क्या है वो guess करता है, उसके बाद उस guess को measure करेगा loss function कि वो guess कितना accurate था, और उसके बाद जो optimizer function आता है वो उस guess को optimize करने की कोशिश करता है. So that guess is then measured against the loss function again, with the logic being कि the optimizer can improve the guess basically. This is the process of training the neural network. So in code we are kind of doing it in a loop. Loop किस तरह का है? I'll explain you the last step जिसमें हमने epochs बनाए हैं, ठीक है? So इस लूप के अंदर क्या होगा कि आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो बार बार गेसेस करता रहेगा और उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करता रहेगा विद लॉस फंक्शन, और ऑप्टिमाइजर फंक्शन उसको बार बार ऑप्टिमाइज करता रहेगा, और ये काम हम तकरीबन 500 टाइम्स करेंगे. एंड लॉस नीचे अगर आपको epochs नजर आए तो epochs इज इक्वल टू 500 का मतलब है कि हम 500 टाइम्स यही काम करेंगे. सो लॉस फंक्शन जो यहाँ पे हमने यूज किया है वो हमारे पास है मीन स्क्वायर्ड एरर, और जो ऑप्टिमाइज हमने यूज किया है वो SGDR, which stands for stochastic gradient descent, and we'll compile a model using these loss function and optimizer function. तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट वी विल डिफाइन आवर डेटा. यहाँ पे जो NP लिखा हुआ है np.array, basically NP is a Python library which makes handling data a lot easier. ये हमने अपना डेटा लोड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में we call our axis and y's, जो कि हमारा डेटा है और उसकी लेबल्स हैं, and tells the model to fit the axis to our y's and do it in a loop, right? जो हमने पहले भी बताया था 500 टाइम्स जो epochs लिखे हैं उसको बार बार इसी लूप में चलाता जाएगा. मॉडल गैस करेगा, लॉस फंक्शन देखेगा कि वो गैस कितना अच्छा या बुरा था, उस हिसाब से ऑप्टिमाइजर फंक्शन उस गैस को दोबारा से ऑप्टिमाइज करता रहेगा, और यही प्रोसेस आपका कंटिन्यूली चलता रहेगा. जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके सारे epochs कंप्लीट हो गए, तो आपका फिफ्थ स्टेप ये जो लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे होगा, once the model has done training you can use it to predict or to make a guess on any unseen data. तो आप इसको कोई भी unseen data देके भी रैंडम वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हमने 10 दी हुई है तो वो आपको कैलकुलेट करके देगा उसकी क्या वैल्यू होगी. अगर अब आपको 10 के हिसाब से वैल्यू उसकी कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आता आपके पास. वो क्यों नहीं आता? क्योंकि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है it deals in probability, a likelihood that the answer is correct. आपको exact answer नहीं मिलेगा, आपके पास हमेशा probability आती है. अगर आपके पास कोई कैटेगोरिकल मॉडल है जो चीजों की टाइप प्रिडिक्ट करे तो आपके पास हमेशा प्रोबेबिलिटी होगी कि कौन सा आंसर या कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है या सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर होगा आउट ऑफ आई थिंक अ लॉट ऑफ आंसर्स. ये प्रोबेबिलिटी होती है, वो लाइकलीहुड बता रहा है आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं बताता कोई भी मॉडल. अभी तक हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल किस्म का न्यूरल नेट डिजाइन किया था, इंतहाई सिंपल था, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक एक्सरसाइज का लिंक दे रही हूँ मैं, इस एक्सरसाइज को आप कॉपी कर सकते हैं, मैं कमेंट्स बॉक्स में भी ड्रॉप कर दूंगी ये लिंक्स. आप इस एक्सरसाइज को खोल के एक्सरसाइज यहाँ तक जब आप को समझ में आ जाए तो आप ये एक्सरसाइज खुद अपने हाथ से कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए. उसके बाद
So let's move on towards computer vision. Now we will look into how the machines can learn to see. So in understanding, computer vision is all about seeing and recognizing things in the field of view. आपको जो चीज नजर आ रही है आप उसको किस तरीके से समझते हैं और आप किस तरीके से उसको पहचानते हैं. सो इफ आई आस्क यू पीपल विच वन इज शू और इसमें से कौन सी कपड़े कौन से जो है वो आइटम्स वो क्लोथिंग आइटम्स है कौन से आइटम्स जो है वो शूज है यू विल नो राइट अवे. आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसमें क्या है. बट हाउ डू यू नो दैट? And how can you teach someone who has never seen these items to recognize these items? What are the rules that make a shoe a shoe? आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये जो ब्लू कलर में नजर आ रही है ये ट्राउजर है, जो रेड कलर में नजर आ रहा है वो जूता है. बट अगेन अगर रेड कलर फीचर है तो उसके और डिफरेंट फीचर्स भी हो सकते हैं. कोई हील वाला जूता होता है, कोई स्नीकर हो सकता है, कोई कोट शूज हो सकते हैं, कोई बूट्स हो सकते हैं, लॉन्ग शूज हो सकते हैं. लाइक देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो किसी एक चीज किसी शू को शू बनाती है. राइट, किसी बैग को बैग बनाएगी, किसी टी शर्ट को टी शर्ट बनाएगी. कुछ फीचर्स होंगे हर चीज के. सो टू ट्रेन मॉडल्स टू रिकॉग्नाइज इमेजेस, तो हमें उसके लिए क्या करता है, बेसिकली वी नीड डेटा एंड लेबल्स. एंड फॉर दैट वी डू हैव अ फैशन एनालिस्ट डेटा जो कि हमें कंप्यूटर विजन के एक सिंपल से एग्जांपल करने में हेल्प देगा. कंप्यूटर विजन बेसिकली होता क्या है? कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ टेकिंग पिक्सेल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग व्हाट्स इन दैम. So let's move towards फैशन एनालिस्ट. तो ये हमारे पास फैशन एनालिस्ट डेटा है जो आपको पब्लिकली अवेलेबल है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. यू कैन यूज इट इन टेंसरफ्लो वेरी इजीली, जो हम आगे अपने एग्जांपल के अंदर देखेंगे. सो इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास 70,000 इमेजेस होते हैं, 10 लेबल्स हैं हमारे पास. इसका मतलब है कि हमारे पास 10 डिफरेंट टाइप के इमेजेस हैं. उसमें कपड़े भी हो सकते हैं और जूते भी हो सकते हैं. सो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ लेबल्स. और इन सब इमेजेस का साइज जो है वो 28 बाय 28 पिक्सल्स है. So 28 by 28 means कि बहुत ज़्यादा small images हैं, but still they are recognizable. तो हम easily इसके ऊपर एक neural network train कर सकते हैं. तो सबसे पहला काम, अब हम न्यूरल नेटवर्क अपना ट्रेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होगा हमें डेटा लोड करना है. सो इनके पास there are some built-in data sets that we can load within a single line of code. अगर इस लाइन ऑफ कोड को आप देखें तो इसके अंदर आपके पास डॉट लोड डेटा का फंक्शन है जिससे आपका सिंपली डेटा फैशन एनालिस्ट डॉट लोड डेटा आपका डेटा लोड कर देगा. उसके बाद अगर आप देखिए तो आपके पास 4 किस्म के पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, ट्रेन उसके बाद टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स हैं. ठीक है. अब इसमें से हमने 70,000 इमेजेस, 60,000 इमेजेस जो है हम रखेंगे अपने पास फॉर ट्रेनिंग पर्पस, और बाकी के 10 के इमेजेस जो होंगे और लेबल्स होंगे वो हम अपने लिए अपने टेस्ट के लिए रखेंगे. अब why do we need train test अलहदा से और टेस्ट अलहदा से? आपको आपके मॉडल की एक्यूरेसी या आपके मॉडल की कैसी परफॉर्मेंस है वो तभी पता चल सकती है जब आप किसी अनसीन डेटा के ऊपर उसको टेस्ट करेंगे और उस अनसीन डेटा के भी आपको लेबल्स और आंसर सब पता होंगे. ठीक है. तो हमने इसी डेटा में से 60,000 के ऊपर हम लोग अपना जो न्यूरल नेटवर्क है उसको ट्रेन करेंगे और बाकी के 10,000 जो हमने इमेजेस रखे हैं उसके ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्या वो जूते को जूता ही बोल रहा है और कितनी एक्यूरेसी ये बोल रहा है, 90% है, 80% है या 10% है. दूसरी चीज आती है कि हमारे पास जो लेबल्स हैं वो 0 to 9 है. फॉर एग्जांपल अगर 0 है तो वो क्लोथिंग है, अगर वो 9 है तो उसका मतलब है कि वो शू है. सो व्हाई डू वी हैव लेबल्स एज नंबर्स फ्रॉम 0 to 9? ये एक और अगर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है. इसमें की 2 रीजन हो सकती है. एक तो बहुत ऑब्वियस कॉमन रीजन है, कंप्यूटर डील्स बेटर विद नंबर्स. ये हमें पता है कंप्यूटर आपका नंबर्स पे डील करता है. राइट. सो कंप्यूटर, दूसरी चीज क्या हो सकती है, बाय यूजिंग स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग किस तरह की, फॉर एग्जांपल बूट के लिए बूट यूज करूंगी मैं, तो इट विल इंट्रोड्यूस अ बायस व्हिच विल रिक्वायर अ न्यूरल नेटवर्क टू लर्न सर्टेन लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उसको इंग्लिश में बूट लर्न करना पड़ेगा और वो बूट किसी और लैंग्वेज में कुछ और तरीके से होगा, तो ये एक बायस इंट्रोड्यूस हो जाएगा फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. सो आप जब आप अपना कोई भी न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी भी किस्म का कोई भी बायस इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे अपने डेटा के अंदर, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड मॉडल जो सबके लिए अवेलेबल हो. सो इफ यू लुक एट दिस कोड, नाउ वी हैव 3 लेयर्स. ठीक है.
फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी फ्लैटन लेयर है. फर्स्ट इज फ्लैटन एंड इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ लेयर एंड इट हैज नो न्यूरॉन. अगर आप देखें तो आइडिया इसका क्या है? The idea is to take the rectangular shape and flatten it into a one-dimensional shape that can be processed by the next layer. आपकी हमने भी images देखे थे तो 28 by 28 हमारी जो images थी उनका size था और ये उसको flatten करके one dimensional size के अंदर ले जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है डेंस लेयर है. अब इस डेंस लेयर के अंदर पहले हम लोगों ने जो न्यूरॉन्स यूज किए थे एक था इसके अंदर 128 न्यूरॉन्स है और जिसके बाद एक और हमें डेंस लेयर ऐड किया इसके अंदर जिसके अंदर 10 न्यूरॉन्स है. तो ये एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस न्यूरल नेट ये काफी बड़ा आपका एक नेटवर्क बन रहा है. उसके बाद जो चीज नोट करने की उसके अंदर दो चीजें, एक हमने यूज किया एक्टिवेशन फंक्शन रेलू और उसके बाद हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया सॉफ्टमैक्स. तो रेलू I'll explain it very try to explain in a very simple words जहाँ पे ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व ना हो. So in actual basically ये दो चीजें हैं रेलो और सॉफ्टवेयर जहाँ पे सारे का सारा मैथ्स आपका जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर जितना भी मैथ्स है वो यहीं पे इन्हीं दो लाइंस के अंदर इन्वॉल्व है. तो रेलू बेसिकली क्या करता है आपका अगर किसी न्यूरॉन का आउटपुट 0 से कम होता है तो उसको 0 पे सेट कर देता है और अगर वो 0 से बड़ा होता है तो आपका आउटपुट जो है वो 1 पे सेट कर देता है. हम 0 पे क्यों सेट करते हैं? क्योंकि अगर आप माइनस में अगर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव वैल्यूज को जाके आगे कैंसिल कर देंगी जिसकी वजह से आपका जो मॉडल है वो सही तरीके से ट्रेन नहीं हो सकेगा. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेलो यूज करें जहाँ पे आपकी किसी भी न्यूरॉन की वैल्यू जब भी 0 से नीचे जाएगी तो वो इसको 0 पर सेट कर देगा और जब वो 0 से बड़ी होगी तो वो उसको 1 पे रखेगा. उसके बाद हमने यूज किया सॉफ्टमैक्स. सो आप सॉफ्टमैक्स तब यूज करते हैं व्हेन यू हैव टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कैटेगरीज. आप क्लासिफिकेशन करें फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं और आपको उसके अंदर से चूज करना है. तो दो चीजें इसके अंदर नोट करने की है. एक तो ये कि हमने डेंस के अंदर अपने लास्ट लेयर के अंदर 10 न्यूरॉन्स रखे हैं. अगर आपको याद हो तो हमारे लेबल्स जो थे वो भी 10 थे. तो हर लेबल के लिए आपके पास एक आउटपुट आएगा, एक प्रोबेबिलिटी आएगी और जो सॉफ्ट मैक्स है वो बेसिकली क्या करेगी उन कैटेगरीज में से हाईएस्ट जो है वो आपको रिजल्ट निकाल देगी. क्योंकि नीचे वाली डायग्राम में कुछ ऑरेंज कलर में नजर आ रही होगी उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है 0.02 0.01 0.02 अगेन आ रही है और आपकी जो सॉफ्टमैक्स लेयर होती है जिसमें से सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है वो उसको 1 कर देती है और उसके बाद बाकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी वो उसको 0 कर देती है. इसका मतलब है कि आपने एक आंसर चूज कर दिया है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी वो क्लास हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो करेक्ट है. उसके बाद हमें यहाँ पे जो चीजें थी हमने यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजर यूज किया था ठीक है वो एटम्स है. उसके बाद यहाँ पे हमने जो लॉस फंक्शन यूज किया है वो स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी है. ये चीज हमने यूज की ये सब की सब आप अगर रीड करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल है, डिफरेंट तरह के लॉस फंक्शंस अवेलेबल है. ये जो हमें यहाँ पे लॉस फंक्शन यूज किया ये स्पेशली डिजाइन होता है फॉर कैटेगोरिकल फीचर जब आप कैटेगराइज कर रहे होते हैं आइटम्स को देन यू यूज दिस लॉस फंक्शन. अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया है आपको समझ में आ गया कि एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क से आप एक आपने थोड़ा सा बड़ा जिसमें से आपने जहाँ पे आपने इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की आपने एक रिलेटिवली बिग न्यूरल नेटवर्क जो है वो बनाया. अगर यहाँ तक आपको समझ आ जाए तो ये एक और एक्सरसाइज है जो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये भी एक्सरसाइज का लिंक मैं कमेंट्स में भी ड्रॉप कर दूंगी और होपफुली आप लोगों को ईमेल में भी भिजवा दूंगी. I'll ask the GDG टीम कि वो भेज दें आपको. ये एक्सरसाइज है जब आप यहाँ तक समझ लें इन चीजों को तो आप ये वाली एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि किस तरीके से आप जो मैंने कोड आपको पिक्चर में दिखाया वो कोड किस तरीके से आप लोग रन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. वो डिटेल्ड एक्सरसाइज अगर आप उसे खोलेंगे तो हर स्टेप जो है वो एक्सप्लेन हुआ होगा. वो सिर्फ कोड नहीं है. आप उसको पढ़ के जब एग्जीक्यूट करेंगे तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. स्टिल इफ यू आर स्टक समवेयर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन अबाउट दिस एक्सरसाइजेस ऑन माय लिंक्डइन. मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूंगी बट आई ट्राई माय बेस्ट.
अच्छा, उसके बाद क्विकली मैं आपको थोड़ा-सा अब सीएनएन का बताऊँगी कि ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे पास जो सीएनएन्स होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास फ़िल्टर लगते हैं और आपके पास कूलिंग लेयर्स होती हैं। आप लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं और फ़िल्टर्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सिंपल वर्ड्स अगर मैं सीएनएन की बात ना करूँ, किसी न किसी फीचर को एनहांस कर रहे होते हैं आपके फ़िल्टर्स, राइट? कभी ब्लर कर रहे होते हैं, कभी शार्प कर रहे होते हैं, लाइट बढ़ा रहे होंगे। जो सीएनएन के अंदर जब आप फ़िल्टर्स ऐड करते हैं, तो ये फ़िल्टर्स भी सेम यही काम करते हैं। आपके डिफरेंट फ़िल्टर्स डिफरेंट फ़ीचर्स को इंक्रीज़ करते हैं या एनहांस करते हैं। कोई फ़िल्टर आपका जो है वो वर्टिकल फ़ीचर्स को एनहांस करता है और दूसरा फ़िल्टर हो सकता है कि हॉरिज़ॉन्टल फ़ीचर्स को या एजेस को एनहांस कर रहा हो। तो बेसिकली होता क्या है कि ये आपका जो सीएन है ना, वो ये फ़िल्टर्स को लर्न करता है कि कौन-सा फ़िल्टर जो है वो बेस्ट काम करे, कौन-सा फ़िल्टर कौन से फ़ीचर्स को एनहांस करेगा। क्योंकि मशीन लर्निंग या आपका जो सीएनएन या जो मॉडल है वो फ़ीचर्स को लर्न करता है और जितने अच्छे, जितने बेहतर फ़ीचर्स होंगे आपका मॉडल उतना अच्छा ट्रेन कर होगा और उतना आसानी से और उतने अच्छे तरीके से इमेजेस के बीच में फ़र्क बता सकता है। तो ये नीचे का छोटा आपको रेड वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर बेसिक एक यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, कोड नहीं आई थिंक लाइक इट्स अ मैथ जिसमें हमने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप सॉरी, तो अगर आप यहाँ पे ऊपर वाला बॉक्स देखें तो यहाँ पे हमने एक इमेज का पार्ट सेलेक्ट किया है जिसकी यहाँ पे 3x3 का आपके पास ये पार्ट है और आपने जो फ़िल्टर सेलेक्ट करना होगा वो भी उसी साइज़ का होगा जिस साइज़ का आपने इमेज का पार्ट सेलेक्ट किया। तो अगर नीचे जो हमारा फ़िल्टर डेफिनिशन है, उस फ़िल्टर डेफिनिशन के अंदर जो हमने चीज़ें रखी हैं -1, 0, -2, 0.5, 4.5, -1.5 ये आपका फ़िल्टर है, ठीक है? अब ये फ़िल्टर कैसे अप्लाई होगा आपकी इमेज के ऊपर, तो आपका जो नीचे वाला है उसके अंदर मैंने मैथ्स वाला फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो करंट पिक्सेल वैल्यू 192 है, तो 192 पे किस तरह से अप्लाई और आपकी नई पिक्सेल वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। अगर ये जो फ़िल्टर है, वो आप अपने इमेज के ऊपर रखें, तो आप ये देखेंगे कि जो माइनस साइन है, वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। 0 जो है, वो 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 128 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह आप इस तरीके से अपना फ़िल्टर प्लेस करेंगे अपने इमेज के ऊपर। तो ये चीज़ें कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसके नीचे वैल्यू आ रही है, उससे बेसिकली मल्टीप्लाई होती हैं एंड देन आप उसको ऐड करते हैं और फिर आपकी जो फाइनल वैल्यू है, वो आ जाएगी आपके पास। दैट्स हाउ यू अप्लाई फ़िल्टर्स। सो अगर इस इमेज को देखें तो आपकी जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है वो फ़िल्टर अप्लाई होने से पहले थी और जो राइट साइड वाली इमेज है वो फ़िल्टर अप्लाई होने के बाद में आई है, ठीक है? और जो आपका फ़िल्टर है वो बीच में जो ऑरेंज बॉक्स है बेसिकली ये फ़िल्टर आपकी लेफ्ट साइड वाली इमेज पे अप्लाई किया था और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास राइट साइड वाली इमेज आई है। अगर आप नोट करें तो उसमें क्या हुआ है? आपकी जो वर्टिकल लाइन्स हैं वो एनहांस हो गई हैं इस इमेज के अंदर और बाकी सारी की सारी लाइन्स जो है वो अ कम नज़र आ रही हैं, वो ब्लर है। इसी तरह कुछ फ़िल्टर्स होंगे जो आपकी वर्टिकल लाइन्स को एनहांस करे, कोई और फ़िल्टर नेक्स्ट फ़िल्टर जो आप अप्लाई करेंगे वो आपकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स को लर्न करेगा या वो उनको एनहांस करेगा। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं जो हम सीएनएन में अप्लाई करेंगे और वो हर फ़िल्टर हर डिफरेंट फ़ीचर को लर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास आती है कूलिंग। अगर आप पिछली पिक्चर में आपने प्रॉब्लम नोट की होगी कि हमने जो फ़िल्टर्स अप्लाई किए थे, तो उससे हमारी इमेज की जो है वो रेज़ोल्यूशन वो गिर रही थी, ठीक है? तो उसका ये तरीका होता है कि उसके लिए हम लोग कूलिंग का काम करते हैं। कूलिंग भी एक लेयर होती है, कूलिंग क्या करती है? अगर आपकी ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे इमेज पड़ी हुई वो आपका इमेज की पिक्सेल्स हैं, ठीक है? उसके ऊपर जो कूलिंग अप्लाई होती है वो किस तरीके से हो रही है कि आपके डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं। अ, जो कूलिंग के फ़िल्टर बेसिकली आपकी इमेज का पार्ट है। अगर आप पहला वाला पार्ट देखिए तो 0, 64 48, 192 ये 2 बाय 2 है और ये आप इसमें से कूलिंग किस तरह से इस पे अप्लाई होगी आपने अपने पूलिंग लेयर का साइज़ सेट किया, वो उस साइज़ का चंक उठाएगा और उस पिक्सेल में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, वो उस लार्जेस्ट वैल्यू को अपने पास रख देगा। इसी तरह पूरी इमेज के ऊपर आपका ये फ़िल्टर अप्लाई होता जाएगा और वो हर चंक में से लार्जेस्ट वैल्यू को रखता जाएगा अपने पास और एंड रिज़ल्ट में आपके पास जो है वो जो फाइनल वर्ज़न आएगा, वो आपके पास सिर्फ़ लार्जेस्ट वैल्यूज़ का है। तो ये पूलिंग है। अगर आपको ये इमेज नज़र आ रही होगी तो इसके अंदर जो कूलिंग अप्लाई करने के बाद अगर आपने देखा हो तो पिछली जो इमेज है उसमें
रेजोल्यूशन कैसी है, और जो आपके पास पोलिंग अप्लाई करने के बाद रेजोल्यूशन आ रही है वो आपके पास बहुत ज्यादा बेहतर है उससे। आपको इमेज ज्यादा क्लियरली नजर आ रही है, उसके अंदर सारे के सारे फीचर्स जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से विजिबल है। तो ये बेसिकली दैट्स हाउ योर CNN वर्क्स। अब जो कोड लिखने का काम होगा वो सेम वैसा ही होता है जैसे आपने अभी पूरा न्यूरल नेटवर्क देखा है। ऑल यू नीड टू डू, आप उसके अंदर सिर्फ लेयर्स ऐड करेंगे, आप अपने फिल्टर्स ऐड करेंगे, दैट, और आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो CNN वाला न्यूरल नेटवर्क है, वो आपका कोड बन जाएगा और वो ट्रेन हो जाएगा। ये अब आपने किस तरह से करना है, मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट नहीं करवाऊंगी क्योंकि कोड बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। आपने सिर्फ लेयर्स ऐड करनी है, लेयर्स कौन सी ऐड हो रही है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो आई थिंक अब आपका काम है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करेंगे आप। ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक और कोलैब है जो आप एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करें एंड आई एम श्योर कि आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये वाली जो लैब्स है इसके अंदर भी हर स्टेप एक्सप्लेन हुआ होगा, सिर्फ कोड नहीं है। आप उसको एक दफा खुद करने की कोशिश करें तो हर चीज लिखी हुई होगी उसके अंदर। उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आई बी हैप्पी टू हेल्प। तो मेरा सेशन जो था वो यहीं तक था। मैं CNN को कोड नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, आपको खुद करेंगे। उसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए तो प्लीज आप वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? सब बाद में आएंगे क्वेश्चन, मुझे पता है। हेलो रामेश, मुझे आवाज नहीं आ रही। Instead, I'm waiting for questions. अगर एक दो questions हैं किसी के तो we'll answer them. Otherwise, we'll move on. ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल है अभी किसी के पास कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, या हो सकता है एक साथ बहुत सारे आ जाए। What are the things that we need to learn to become data scientist? ये बहुत वास्ट किस्म का क्वेश्चन है ये जो कमेंट किया आपने। एक पहली तो बात ही डिपेंड करता है कि आप करंटली किस लेवल के ऊपर है। आप बिल्कुल बिगिनिंग में है या आपका बिल्कुल जीरो लेवल है, या आप इंटरमीडिएट है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। और दूसरी बात यह है कि डेटा साइंस जो है वो उसका कोई सिलेबस नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप बस ये वाली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ये वाला सीख लें तो आप बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। बट अगर मैं जनरल आंसर करूँ उस क्वेश्चन का, तो ऑब्वियसली आप मशीन लर्निंग से अगर स्टार्ट करते हैं तो पहली बात है जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं होता। हर डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग कर सकता है, पर हर मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो डेटा साइंटिस्ट नहीं होता। ये आपको चीज पहले समझने की जरूरत है। डेटा साइंस के अंदर आपको जो चीजें आना जरूरी है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है डेटा एनालिसिस। आप डैशबोर्ड्स आपको बनाने आते हो, आपके पास जो है वो एसक्यूएल जो हमें सीक्वल क्यूरीज होती है वो लिखने का नॉलेज हो, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि डेटा वेयर हाउस में किस तरह से काम होता है। डेटा वेयर हाउस बनाना नहीं पड़ता आपको, लेकिन ऑब्वियसली आपको उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा आप उसके बाद आती है मशीन लर्निंग वाला पार्ट। तो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली ज्यादातर डेटा के साथ प्ले कर रहे होते हैं, और कुछ पार्ट होता है जिसमें वो मशीन लर्निंग का काम कर रहे होते हैं। मशीन लर्निंग की जब बात आती है तो उससे भी डिफरेंट डोमेन्स है, ठीक है। आप NLP की तरफ जा सकते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस की तरफ रह सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको वन बाय वन एक काम करना है। आप अगर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हर चीज सीख चाहते हैं उसके बाद आप जा सकते हैं रिकमेंडेशन इंजन या NLP की तरफ, और ये सब चीजें जब आप कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर विजन की तरफ जा सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम को एक टाइम पे लें, उसको सॉल्व करें या उसको सीखें, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट लेवल। व्हाट आर द थिंग्स, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन मार्क्स क्यों आ रहे हैं? शेयर ऑल एक्सरसाइज लिंक्स, मैं एक्सरसाइज लिंक्स आपको शेयर कर देती हूँ। ओके, ये आ गया आई थिंक आपके पास। बिल्ट इन फिल्टर्स, यस ऑब्वियसली आपके पास जितने भी बिल्ट इन फिल्टर्स होते हैं डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। अगर आपका बिल्ट इन फिल्टर से काम हो रहा है तो आपको जीरो लेवल से
स्टार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी, ये समझाने के लिए दी थी। मोस्टली आप जब लेयर्स और फ़िल्टर्स होते हैं, वो जो बिल्ट इन होते हैं, आप उसको ही ऐड करते हैं। कोई आप बहुत हाई लेवल काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई फ़िल्टर खुद बनाना पड़े, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्टली बिल्ट इन ही यूज़ करते हैं। जो एग्ज़ाम्पल थी, इसके अंदर वो इसलिए थी कि ये जो फ़िल्टर्स हम बेसिकली बिल्ट इन यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि ये हमने फ़िल्टर तो ऐड किया, पर ये अप्लाई किस तरीके से होता है। सो वो एक डेमोंस्ट्रेशन थी कि कोई भी फ़िल्टर जो है, वो डेटा पे अप्लाई कैसे हो रहा होता है। और उसके अलावा आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं हमारे पास। Yes, I think we're done Hmm. for this session. Adam, thank you so much again for joining us. And we'll be providing the exercise links that Iram shared to the chat, as well as you can see them on the screen. It was a good session. And as always, Thank you so thank much. you for leading Cloud Dev Fest for the second time and being a part of GDG Cloud Islamabad. And thank you for this informative session and your contribution to GDG Cloud Islamabad. We'll be moving on and seeing you again another time soon, inshallah. So thank you Thank you for so being much. with Okay, us. bye, Ramesh. Bye.